आप सभी आज के गणमान्य अतिथिगण एवं इस दिन को रंगीन बनाने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के माता पिता एवं अभिभावकगण, सतन्ना अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिरनीपेड़ा अंबिकापुर सपरिवार इस प्रथम विद्यालय वार्षिक उत्सव में आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता है। हम ताली बजाकर एक दूसरे का स्वागत करें। Today is very special day for all of us to remember the countless blessings of God in our journey of achievements. And the day is become more special and graceful. The presence of our honorable chief guest, our special guest, with great pleasure and deep honor. I would like to call upon on the stage our chief guest, Reverend Father John Jaswal Kujur, School Director, Ambikapur Diocese. Let's welcome him with a big round of applause. मैं देखता हूँ To welcome and honor him with badge and bouquet, I request Miss Khushbu Lakra and Sister Nirmal. Next, I call upon Reverend Sister Dorothy Eka, former provincial. मैम इधर देखिए। Which is Reverend Sister Rosalia Kujur, the headmistress, Ambika Mission Middle School. देखिए मैम इधर। Headmistress Vidya Deep Primary School. Next, I call upon Sister Emrencia Khalko, KG in charge. Let's give them a special clap to welcome on the stage. Let's once again big round. देखिए मैम। देखिए। देखिए Asto ma sadgamya tamso ma jyotirgamya. Now it's the time to lead the lamp and to try Reverend Father John Jaswal Kujur, Reverend Sister Mary Clara Turco, Reverend Sister Dorothy Eka. The lamp is lighting the soul, inviting wisdom, driving away ignorance. May the special flame awake purity, clarity, and divine grace within. When the lamp glows, blessings flows, filling our hearts and home with light. To all our respected guests, thank you for blessing this occasion and making auspicious beginning. Serenity, we now call upon our students to present the prayer dance.
साथ हो। जो आए हैं इस महफिल में उन सब पर रब की सौगात हो। आइए मिलकर इस रंगीन सफर की शुरुआत करें खुशियों के सुरों और मुस्कानों के संग।
the theme, our students are coming for the skit, the title, A Journey of Achievements, उपलब्धियों की यात्रा. Let's welcome them with the big round of applause. Class 4. I am Rasul Bakar, studying class 4. I am Arvind Kirketa, studying class 3. I am Anushka Thorina, studying class 2. Meet a young girl named Aruhi. Her heart burned with dreams bigger than the mountains around. Guys, I have decided I am going to achieve something big this year. One day I will become the best in the field. Big dreams like finishing your homework or waking up without hitting the right standard. Not bigger, I want to win the national competition. It's a great dream, and I think you can do it. Dreams are big, but they need hard work. Are you ready? Yes, ma'am. Please tell me what I will do. Practice daily, stay focused, and don't let failure stop you. Let us see how long that will take. Still, prove you wrong. Aruhi trained every day, but the journey was easy. Oh, I tried my best. Maybe I got not do this. Come on, Aruhi. If you quit now, who will give us place next when you become famous? Remember, Aruhi, failure is not the opposite of success. It's part of it. Okay, I'll keep on going. Days turned into weeks and weeks into months. Aruhi improved more than even imagined. You did it. You did your best performance. I knew you could do it. All right. I admit it. You have surprised me. Does this mean we get snacks now? First achievement, snacks later. Finally, the day of competition arrived. The winner is Aruhi. Congratulations, Aruhi. Congratulations, Aruhi. Congratulations, Aruhi. Congratulations, Aruhi. Thank you, friends. Thank you, everyone. I did it, but not alone. You're pushing, believing, and never letting me quit. We are proud of you, Aruhi. So now we party, right? Yes. Today at least coffee. Next day we have party. Okay, thank you. And so Aruhi learned that achievement is not just about winning. It's about dreaming, struggling, improving and believing. The journey is the real achievement. Achievement is not a destination but a journey. की यात्रा कठिन है पर असंभव नहीं. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है.
Mummy, Daddy, Mummy, Daddy, Papaya. Watermelon, watermelon, papaya, papaya. Chiku, 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 chiku. Rosala, rosala. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, morning nursery, morning nursery. Ding dong, ding dong. With great pleasure, we, our esteemed in charge, Sister Aarti Aruna Eka, the visionary leaders behind our school's achievements, to the stage to present the annual school report. A warm round of applause. Good afternoon, everyone. Respected Chief Guest, Reverend Father John Jaiswal Kujur, School Director, Ambikapur Diocese, Reverend Dr. Sister Bhanu Prabha Bada, DSA, the manager of the school, Reverend Sister Mary Clara Topo, DSA, the superior of the house and principal of Ambika Mission Higher Secondary School, Birnibeda, Ambikapur, and distinguished guests, teachers, sisters, parents, and all my dear students. Today I feel extremely proud and grateful to present before you the school report of St. Anne's English Medium School, Birnibeda. A dream that was nurtured with faith, vision, and collective effort. The journey of our school began when the local community strongly felt the need of an English medium school, so that children from all sections of society, especially those belong to the economically weak backgrounds, and also receive equality English education. With this noble thought, a meeting was held on leadership of Reverend Sister Mary Clara Topo, the superior and the principal of Ambika Mission, on 7th December 2021, where the important objects and facilities of opening an English medium school was discussed. The proposal received wholehearted support and committee agreement was expressed by all members of the community. As the vision slowly took shape, another meeting was held on 22nd March 2022, in which it was decided that the school would begin with nursery to KG2 in the academic year 2022 to 23 and would expand to class 1 in the year 2023. This decision marked a significant step towards transforming the dream into reality. Following this necessary application and formal
procedures were initiated on 3rd May 2023. An application was submitted to the Central Council for permission to open the school. With the consent of committee, the application was forwarded to Most Reverend Sister Lily Grace Togno DSA, Superior General. After prayerful consideration and guidance, on 11 January 2024, permission was graciously granted by Reverend Sister Mary Kusum Tirki, DSA Provincial Superior, to open the 5th English Medium School at Birnibeda. This moment became a milestone in the history of institution and province. Further official procedures were completed by submitting the requirement documents to the District Education Officer, Ambikapur, the Block Education Officer, and the Sangul Office for CG and CBSE. We are also blessed to receive recommendation letter from His Lordship, Most Reverend Bishop Dr. Anthony Spada, DD Ambikapur Diocese, which strengthened our mission and gave us moral encouragement. In the academic year 2023 to 2024, Sister Reena Lakda served as first in charge of the pre-primary section and laid a strong foundation for the growth of the school. In the following academic year 2024-25, the children showed remarkable progress. Their presentation in all areas was commendable, and annual result reflected the sincere effort of both students and teachers. From the beginning of the academic year 2025-26, special emphasis has been given to the holistic development of the children. Students were provided ample opportunities to participate in various school activities and entire school competition. This experience helped them to grow physically, mentally, emotionally, and intellectually. The children have learned confidence, teamwork, discipline, and creativity, which are essential for the life beyond classroom. What began as a small dream has now blossomed into a nurturing and institution dedicated to shaping young minds and their bright future. We are grateful to our sister in charge for presenting insightful school annual report and continuously leading us with dedication. कोई भी मुश्किलता थका नहीं सकती, हंसने की रुकावट आ नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। Everyone, it's time to welcome our kids on the stage for delightful Hindi dance. Please give them a big round of applause.
इसका सही उपयोग करना माता पिता की अपनी जिम्मेदारी है कि बच्चों को इसके उपयोग और महत्व को बताना और समझाना कितना आवश्यक है। तो लीजिए यहाँ प्रस्तुत है मोबाइल के बारे आपसे बच्चों की आशा क्या है। हम जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों के विचारों का स्वागत करें। आपके साथ केवल ये हमारी असली यादें हैं। हम बच्चों को आज वक्त नहीं दोगे तो कल वो अपनी बात मोबाइल से करेंगे, माता पिता से नहीं। आजकल हम बच्चों को चुप करवाने के लिए मोबाइल दे देते हैं, पर हम भूल गए हैं यही उसकी असली पहचान करता है। हम बच्चे कल के आईने हैं, जो आप हमें सिखाएंगे वह कल समाज में दिखाएंगे। मम्मी पापा हमें आपसे बात करनी है, आपके कहानियाँ सुननी है, आपके मोबाइल की चिक रही। मम्मी पापा हमें आपकी सीख और संस्कारों की जरूरत है, ना कि मोबाइल की। ये आपके साथ के पल ही हमारी असली यादें हैं। मम्मी पापा जैसा आप हमें बनाएंगे हम वही बनेंगे, इसीलिए मोबाइल छोड़कर हमारा साथ लीजिए। बचपन दोबारा लौट कर नहीं आता है, इसलिए हमें हमारे बचपन में संस्कारवान बनाइए। अपराध केवल गलत काम करने से नहीं होता, अपराध लापरवाही से ही होता है। और बच्चों को मोबाइल देकर आप वही कर रहे हैं। यदि हमारा संदेश दिल को छू गया हो तो सभी माता पिता तक पहुंचाने के लिए साझा करें। धन्यवाद। जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी।
रंगीला तारा रंगीला तारा कक्षा दूसरी के हमारे स्टूडेंट्स की सुंदर मनोहर प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम सब भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच सम्माननीय मुख्य अतिथि स्वर्गीय फादर जॉन जायसवाल हुजूर अंबिकापुर तहसील शिक्षा विभाग के डायरेक्टर उपस्थित हैं, जो ज्ञान एवं अनुभव के धनी हैं। मैं उन्हें अपने उत्साहवर्धक प्रेरणा के उद्बोधन एवं आशीर्वचन के 2 शब्द साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सिस्टर क्लारा, सम्मानीय सिस्टरगण और आप सभी प्यारे सम्मानीय माता पिता, भाई और बहनों और प्यारे विद्यार्थियों और स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, आज जो यहाँ पर टाइटल दिया गया है जर्नी ऑफ अचीवमेंट्स, और इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, आपने दिखा दिया, जो कि आज क्लास 4 तक केवल पहुँचा है। लेकिन हमारे बच्चों ने यह दिखा दिया है कि वे वास्तव में अनुभवी हैं और वो अनुशासन में पारंगत हो रहे हैं। उन्होंने यह बता दिया हमें कि उनमें बहुत सारी काबिलियत हैं जिसको निखारने की ज़रूरत है, और हमारे सभी स्टाफ के टीचर्स उसे निखार रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, डांस है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है, और जिसका परिचय आज हमारे सभी बेटे बेटियों ने दिखा दिया है परफॉर्मेंस के माध्यम से। वाकई में बेहद ही अच्छा रहा, और हम देखते हैं आप प्रत्येक जन भी बहुत प्रसन्नचित और प्रफुल्लित हुए होंगे कि छोटे छोटे बालकों और बालिकाओं को सिखाना और सिखा के यहाँ प्रेजेंट करवाना कितना कठिन कार्य है, फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति दी है। तो मैं प्रत्येक मैनेजमेंट के सभी सिस्टर्स को और स्टाफ के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को आप उनके जीवन को निखारने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, और आप में जो ईश्वर ने जो गुण दिया है, निपुणता दी है, उसको बच्चों में आप उसको पिरो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप प्रत्येक जन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए, और
इसी शुभकामनाओं के साथ बच्चों को भी बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह से आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए, न केवल नाच गान खेलकूद लेकिन अन्य विभागों में भी, और निश्चित तौर पर आप वो कार्य भी कर रहे हैं खेलकूद के माध्यम से, अन्य गतिविधियों के माध्यम से। क्योंकि ये बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी आज उन्होंने ताबड़तोड़ प्रस्तुति दी है, उसके लिए मैं पुनः आप माताओं पिताओं को भी धन्यवाद देता हूँ जो आप इनको यहाँ भेज रहे हैं इस सुंदर स्कूल में, जहाँ पर अभी अभी इंग्लिश मीडियम खुली है। मैं आप प्रत्येक जन को और कहना चाहूँगा कि और अपने बच्चों को भेजिए और इस तरह से उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य हो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसको मजबूती दीजिए। पुनः एक बार मैं सभी सिस्टरों को, स्टाफ के सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सभी विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। पुरस्कार सिर्फ जीत का नहीं बल्कि मेहनत और प्रगति का प्रतीक होते हैं। अतः समय है उन चमकते सितारों को सम्मानित करने का जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से आज यहाँ विशेष स्थान बनाया है। सन 2024-25 के वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए हमारे मुख्य अति सामान्य फादर जोन जायसवाल हुजूर, डॉक्टर सिस्टर भानुप्रभा बड़ा और सिस्टर मेरी लारा टोपो को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कर्मा 97% मंच पर आ जाएंगे अभिभावक के साथ। ध्रुव विश्वकर्मा 97%। आर्या सिंह 96.6%। आर्या सिंह 96.6%। अभिभावक के साथ आ जाएंगे। श्रेयांश तिर्की 96.6%। विजय महलदार 96.6%। आरवी जायसवाल 95%। आरवी जायसवाल 95%। प्रिंस कुमार राजवाड़े 92.6%। अलेक्स एरिक गुजूर 90.6%। जितने भी विद्यार्थियों का नाम हुआ है पेरेंट्स के साथ स्टेज पर आ जाएंगे। KG1 आकृति लकड़ा 96%। KG1 से आकृति लकड़ा 96%। मंच पर आ जाएंगे। KG1 आकृति लकड़ा 96%। अनिका मिंज 91%। अनिका मिंज 91%। आशिया टोपो 90%। आशिया टोपो 90%। KG2 इभा रानी मिंज 96%। हम हमारे विद्यार्थियों के लिए जोरदार तालियां बजाते रहेंगे। KG2 इभा रानी मिंज 96%। मिस्टी गुजूर 96%। एलिसा एका 93%।
बच्चों को हार्दिक बधाई एवं भावी जीवन की सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां बजा लेंगे। अभी संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची की संस्थापिका ईश सेविका माता प्रेरणा देव के सम्मान समारोह में 1 नवंबर 2025 को राय रघुनाथपुर में आयोजित खेल एवं भाषण प्रतियोगिता में भाग लिए छात्रों को पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अनुप्रिया तिर्गी, रिया एक्का, आरोही चौरसिया, रिया पैकरा, अंजू कुजूर, संध्या सोनी, आरोही ठाकुर, आराध्या रवि स्टेज पर आ जाएंगे। अनुप्रिया तिर्गी, रिया एक्का, आरोही चौरसिया, रिया पैकरा, अंजू कुजूर, संध्या सोनी, आरोही ठाकुर, आराध्या रवि। अनामिका एक्का, प्रज्ञा तिर्गी। बॉयज हर्षित कुमार, आर्यन प्रजापति, अमरजीत प्रिंस। हर्षित कुमार, आर्यन प्रजापति, अमरजीत प्रिंस स्टेज पर आ जाएंगे। हरदीप कुमार, आर्यन प्रजापति, अमरजीत प्रिंस। अमरजीत प्रिंस क्लास वन से अमरजीत प्रिंस।
dedication. देखिए इधर
full rhythm, fun celebration. To bring that energy to our stage, our students are ready to perform. Please put your hands together for the Punjabi dance. Reverend Dr. Sister Bhanu Prabhavada to join us on the stage to give her message and to thank the group for their efforts in presenting their program. Also the presents for their presence. Let's welcome her with a big round of applause.
अति सम्मानीय प्राचार्य सिस्टर आरती अरुणा एक्का, स्टाफ के सभी सदस्यगण, हाई स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर नैनिता राठौर, सभी शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित अभिभावकगण, सभी शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थी, हम आज वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। वर्ष भर में हम विभिन्न गतिविधियों को संपन्न करते हैं। ये एक तरह का मूल्यांकन है और इस सुंदर अवसर पर मैं कुछ बातों को कहना चाहूँगी। हम इस समय बच्चों की विभिन्न गतिविधियों को देखें। हमने देखा कि क्लास नर्सरी से क्लास 4 तक के विद्यार्थीगण अपनी क्षमताओं को किस तरह से समूह के बीच में प्रदर्शित कर सकते हैं। और शिक्षा का मतलब ही होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या भावात्मक। इन क्षेत्रों में हम बच्चों को देखते हैं कि वे शारीरिक गतिविधियों को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ खेल गतिविधि नहीं हुई, लेकिन वर्ष भर में कई खेल प्रतियोगिताएं हुई, उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है और इस तरह से वे शारीरिक रूप से बढ़ते हैं। वे निरंतर शारीरिक रूप से बढ़ते हैं और उसी के साथ साथ मानसिक रूप से बढ़ते हैं। विद्यालय में शिक्षक उनको मानसिक रूप में बढ़ने के लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थीगण अध्ययन करके हमने यहाँ देखा कुछ बच्चे 90% से ज़्यादा प्रतिशत विभिन्न विषयों में अंक प्राप्त करके अपना खास जगह बनाए और निश्चय ही आप अभिभावकों को बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छा पढ़ती है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि वे भविष्य में आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं। और इसी तरह भावात्मक पहले कहा, मनोवैज्ञानिक बच्चों को हम किस तरह से सिखाते हैं कि कब उनको किस तरह से व्यवहार करना है, गलती करने से उनको क्या बोलना है और जब गलती होती है तो हमें सिखाना है हम सॉरी कहें, क्षमा मांगे। और उसी तरह जब वे बातों को नहीं सुनते हैं तब हम उनको सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसी तरह हम कई तरह की बातों को मैंने कहा कि ये हमारे हर एक बच्चे के लिए जीवन की एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिसको बच्चे को बचपन से परिवार में और विद्यालय में सिखाना है। और मैंने कहा मानसिक विकास के लिए विद्यालय में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा ली जाती है और उनके ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही साथ नैतिक मूल्य हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। नैतिक मूल्यों को बच्चे बचपन से ही माँ के गर्भ से ही सीखते हैं। माँ किस तरह से व्यवहार करती है, गर्भ में पल रहे बच्चे उसी समय से सीखना शुरू करते हैं। इसलिए हम नैतिक मूल्यों को अपने परिवार में स्वयं अभ्यास करें और उसी को विद्यालय में आकर के आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे कि हम कब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। और किस तरह से हम बड़ों का आदर करते हैं, किस तरह से हम विभिन्न गतिविधियों में अपना सहयोग देते हैं, योगदान देते हैं। तो नैतिक मूल्य बहुत सारी बातें होती है, तो इन क्षेत्रों में मैं बोलना चाह रही थी कि हम परिवार में और विद्यालय में नैतिक मूल्यों को बच्चों को सिखाएं और अभ्यास कराएं। साथ ही साथ हम बच्चों को देखना चाहते हैं कि वे सदा खुश रहें। खुश कभी रहते हैं कोई भी व्यक्ति जब उनको स्वीकार किया जाता है, जब उनको प्रोत्साहित किया जाता है, अच्छा करने से प्रशंसा की जाती है। इसलिए परिवार में भी जब बच्चे अच्छा करते हैं, छोटे छोटे कार्य कराए जाते हैं तो माता पिता को बोलना है कि बहुत अच्छा, सुंदर, अच्छा बेटा है, अच्छी बेटी है, तब वे खुश होते हैं। उनको लगता है कि मैं अच्छा हूँ। और इसी तरह विद्यालय में भी प्रशंसा करने की जरूरत है। हर मनुष्य की एक इच्छा होती है, मानसिक इच्छा होती है कि वे स्वीकार किए जाएं, परिवार में भी और विद्यालय में भी। ये
विषयों के बारे में हमें जानना है और बच्चों को सिखाना है। जब हम बच्चों का लक्ष्य ऊंचा रखते हैं तो हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिवार में भी और विद्यालय में भी उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनकी मदद करें। इसलिए पेरेंट्स से आशा है अभिभावक से कि आप घर में भी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। विद्यालय में भी निश्चित रूप से देते हैं, अधिक संख्या में एक बच्चे को अच्छी तरह से शायद नहीं सिखा पाते हैं, लेकिन परिवार में और विद्यालय में दोनों जगह अगर उनका सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही बालक ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच सकेगा। और जब बालक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो हमें खुशी होगी और हमारे समाज का विकास होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। इसलिए बच्चों को लिखने, पढ़ने, बोलने और काम करने के लिए सिखाएं और विद्यालय में भी सिखाएं। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, आप सुबह से यहाँ पर उपस्थित हैं और थक भी रहे हैं, तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि हम जिन जिन मूल्यों को बच्चों में देखना चाहते हैं उसको परिवार में भी सिखाएं और विद्यालय में भी सिखाया जाए। और आशा अपेक्षा की जाती है आपसे कि आप विद्यालय के साथ जुड़े रहें, बच्चों के माध्यम से विद्यालय के साथ जुड़े रहें, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ सहयोगी भावना से काम करें, जिससे कि आपके बेटे बेटियाँ आपकी अपेक्षा आशा के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। तो आपके संपूर्ण सहयोग के लिए हम विद्यालय परिवार के सभी स्टाफ और हम घर में आपको सारी हृदय से धन्यवाद कहती हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप हमेशा ही हर दुख सुख, हर प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में विद्यालय में आए और अपने अपने बच्चों का साथ लें, हमारे साथ बातचीत करके और हमारी आशा के अनुकूल अपना सहयोग देकर। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आगे समय के लिए, अगले समय के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अपने लिए सबके लिए ताली बजा देंगे।
I call upon Reverend Sister Aarti Alpna Ekka, the in charge of the school, for the conclusion. प्रोग्राम की समाप्ति की ओर है। तो अभी के इस क्षण में मैं आज के हमारे मुख्य अतिथियों को, सभी सिस्टर्स, सभी पेरेंट्स, सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत देती हूँ। आज के इस दिन को सफल बनाने के लिए आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी हमारे गेस्ट को मैं धन्यवाद देती हूँ। उनकी उपस्थिति ने आज के इस दिन को बहुत ही यादगार और हमारे लिए कृपा का दिन बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं सभी स्टाफ मेंबर्स को, जिन्होंने तैयारी से लेकर आज के इस दिन को संपन्न करने में अपना परिश्रम, अपना त्याग और सभी दृष्टिकोण से बच्चों को तैयार किया। हम धन्यवाद देते हैं हमारे अमृता मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, जिन्होंने अपने सहयोग से यहाँ साउंड सिस्टम और हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करते हुए अपना सहयोग हमें प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे फोटोग्राफर भाइयों को, जिन्होंने बहुत ही उदारतापूर्वक हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज के को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में पन्नों में इसे संजो कर रखने के लिए हमें यह अवसर दिया है। हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी प्यारे प्यारे के माता पिता और जितने भी उपकारक यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी का उपस्थिति हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत रहा। बच्चों को अपने जीवन में इसी तरह सामने आकर कुछ करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया है। तो पुनः सबको अपना महत्वपूर्ण समय अपने बच्चों के लिए देने के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम एक बार जोरदार ताली बजा लेंगे। तो पुनः जितने भी इस दिन को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है, प्रत्येक का हम धन्यवाद करते हुए आज के को हम यहीं पर समापन करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।